Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our next lecture and we are continuing the drugs, treating the and managing the seizure disorder and epilepsy. And now the next drug is, or the 11th drug is lamotrigine. Now, what is the mechanism of action of lamotrigine? Its anti-epileptic effect is similar to that of phenytoin. It means that its effect may be result in inhibition of voltage dependent sodium current and reduction in sustained repetitive neuronal activity, and it is indicated for the treatment of partial seizure and secondary generalized tonic clonic seizure that are not controlled with other drugs. दो बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ लाइक फेनिटॉइन, मीन्स के जो है वो एक्शन पोटेंशियल को ये सप्रेस करते हैं बाय इनहिबिटिंग द सोडियम चैनल, सोडियम करंट, और उसकी वजह से न्यूरोनल एक्टिविटी सप्रेस होती है. और दूसरी बात ये कि पार्शियल सीजर और सेकेंडरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में ये ड्रग जो यूज़ की जाती है बट एज ए सेकेंड लाइन थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे जो है दिस इज़ द पॉइंट कि इट इज़ यूज व्हेन दिस टाइप ऑफ सीजर आर नॉट कंट्रोल्ड विद अदर ड्रग्स. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट लीनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, जो कि बच्चों में होता है सीजर डिसऑर्डर. लेमोट्रिजीन इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम and is well tolerated monotherapy and probably the least teratogenic of the first line agent. और teratogenic अगर agents में देखें तो उसमें first line agent है and it is least teratogenic. It may aggravate severe myoclonic epilepsy, लिहाजा myoclonic epilepsy में जो है ये ना दी जाए. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें, एडल्ट अबव 16 years initially 50 milligram per day in 2 divided doses. Patient taking valproic acid should be given 25 milligram every other day. तो अगर valproic acid के साथ कॉम्बिनेशन में देनी है तो फिर it should be given 25 milligram every other day and up to इसकी जो maximum dose है 100 milligram per day and 25 milligram daily with valproic acid treatment. तो यानी valproic acid के बाद फिर आप maximum जा सकते हैं इसको 25 milligram daily तक. मोनोथेरेपी की अगर हम बात करें तो मोनोथेरेपी adults 12 years 25 milligram daily for 14 days, then 50 milligram for 14 days and then up to 500 milligram daily तक maximum dose तक हम जा सकते हैं. चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो the treatment of lamotrigine with in children, the dose is 2 to 12 years में 0.6 milligram per kg per day in 2 divided doses और valproic acid के साथ 0.15 milligram per kg day on valproic acid treatment and up to 1.2 milligram per kg per day without valproic acid and with valproic acid 0.3 milligram per kg per day with valproic acid. The smallest available chewable dispersible tablet is 5 milligram. And then after 2 weeks increase by 0.3 milligram per kg per day in 1 or 2 divided doses up to a maximum dose of 200 milligram per day. Swallow chewable dispersible tablet whole, chewed or dispersed in water or diluted with fruit juice. इन तमाम तरीक़ों से इसको लिया जा सकता है. swallow भी किया जा सकता है chewable dispersible tablet को एज ए whole, chew भी किया जा सकता है मुंह में, और वाटर में भी डिस्पर्स किया जा सकता है और डाइल्यूट किया जा सकता है फ्रूट जूस में. इफ़ च्यूड कंज्यूम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और डाइल्यूट फ्रूट जूस टू एड इन swallowing and to disperse and add the chewable dispersible tablet to a small amount of liquid which is 1 teaspoon enough to cover the medication. Approximately 1 minute later when the tablet is completely dispersed, swirl the solution यानी उसको चमचे से लाइक घुमा लें and consume the entire quantity immediately. For patients taking valproic acid, the initial dose is 50 milligram daily for 2 weeks followed by maintenance dose of 100 to 200 milligram daily in 2 divided doses. तो ये जो है valproic acid के साथ है, इस तरह से दिया जा सकता है. Reduce clearance in elderly नेसेसिटेट डोजेज रिडक्शन. अगर क्लियरेंस रेट कम हो रहा है तो फिर डोजेज रिडक्शन की ज़रूरत है. पेशेंट्स विद हेपेटिक इम्पेयरमेंट में रिक्वायर्ड डोजेज रिडक्शन बिकॉज रिडक्शन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो फिर डोज भी कम करनी पड़ेगी उसके लिहाज से. नाउ
Precaution and monitoring effect. Caution should be used for patients taking this drug. It may adversely affect the patient metabolism or complicate the elimination of drug because renal, hepatic and cardiac impairment. तो ये तमाम चीज़ें ये करता है, रीनल इम्पेयरमेंट भी करती है ये ड्रग, हेपेटिक इम्पेयरमेंट भी करती है, तो कार्डियक इम्पेयरमेंट भी करती है, तो ये तीनों फंक्शन जो है इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है. लेमोट्रिजीन bind to the melanin pigment and can accumulate in melanin rich tissue over time, so periodic ophthalmological monitoring is recommended ताकि ये चेक किया जाए कि ये मेलेनिन के साथ बाइंड होके जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉज कर रही आई में, जैसे मेलेनिन पिगमेंट होते हैं और स्किन पर होते हैं. Photosensitization means photoallergy and phototoxicity. Patients should take protective measures to exposure to ultraviolet light or sunlight, like gloves पहने, ठीक है, जो है हाथों को भी प्रॉपरली कवर करें, या फिर फेस पर जो है वो जैसे सन स्क्रीन लोशंस का इस्तेमाल करें. Serious rashes requiring hospitalizations have been reported. The incidences of rashes like Stevens-Johnson syndrome, जो कि serious hypersensitivity reaction है स्किन पे, is approximately 1% in patients less than 16 years old and 0.3% in adult. तो incidences हैं वो 1% है less than 16 years में और 0.3% है adult में. Rare cases of toxic epidermal necrolysis and rash related death have occurred, rare cases में, and most rashes occur within 2 to 8 weeks of initial treatment. लिहाजा 2 to 8 weeks बहुत ज़्यादा closely monitoring करने की ज़रूरत होगी. Adverse effects की बात करें अगर हम लेमोट्रिजीन की, the most common side effects are dizziness, diplopia, ataxia, blood vision, nausea, dose related rash and vomiting. CNS effects क्या है? हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एटेक्सिया टिक्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, यानी ये कि लेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स. GI इफेक्ट्स, nausea, vomiting, diarrhea and dyspepsia. Ocular effects are आई में डिप्लोपिया, ब्लड विजन एंड विजन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. Dermatological effects are pruritus and rash may be similar to that of found when using phenytoin and carbamazepine. And in many cases the rash disappear during continued therapy, but 1 to 2% of the patient with rash represents a more serious allergic reaction, जिसको हम ऊपर already discuss कर चुके हैं. Occasionally patients have developed the Stevens-Johnson syndrome, ठीक है, कुछ occasionally ऐसा भी हो सकता है कि severe hypersensitivity reaction हो. Concomitant use with valproic acid may increases the likelihood of rash. Valproic acid के साथ rash का risk ज़्यादा है. The occurrence of life-threatening rash that were reported develop within 2 to 8 weeks following the therapy, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 to 8 weeks में इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है. एंड अदर केसेज ऑफ रैश हैव बीन रिपोर्टेड डेवलपिंग अप टू 6 months ऑफ थेरेपी. द इंसिडेंस ऑफ रैश इज़ हायर इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स. बच्चों में ये रैशेज़ के इशू ज़्यादा हैं कंपेयर टू एडल्ट्स. मोनोथेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाउंड नो टेरेटोजेनिक इफेक्ट, लिहाजा प्रेगनेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है. एज फार एज कंसर्न विद सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, कार्बामेजेपिन डिक्रीजेज द लेमोट्रिजीन कंसनट्रेशन बाय 70%. इस लेमोट्रिजीन की कंसनट्रेशन कम कर रहा है कार्बामेजिन बाय इंक्रीजिंग द कार्बामेजेपिन एंड इंक्रीजेज द कार्बामेजेपिन लेवल, और कार्बामेजेपिन का लेवल भी जो है वो बढ़ा देता है. जो अपना लेवल है कार्बामेजिन खुद बढ़ा देता है. फेनोबार्बिटॉल एंड प्रेमिटोन डिक्रीजेज द लेमोट्रिजीन कंसनट्रेशन बाय 40% एंड वेल्प्रोइक एसिड डिक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लेमोट्रिजीन. तो लेमोट्रिजीन का लेवल जब कम होगा तो फिर उसकी हाफ लाइफ और कंसनट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्सटेंड द हाफ लाइफ अप टू 60 hours लेमोट्रिजीन की, विच नेसेसिटेट्स ए डोज रिडक्शन ऑफ लेमोट्रिजीन, जिसकी वजह से लेमोट्रिजीन की डोज रिडक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज़ टोपिरामेड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, topiramate is a derivative of fructose and it decreases the rapid hippocampal neuronal firing and possibly because of sodium or calcium channel inhibition. अच्छा, अब यहाँ पर भी ये बात कर रहे हैं possibly because of कि sodium and calcium channel inhibition, यानी इसका भी जो exact mechanism of action है वो unknown है. तो हिपोकैम्पल रीजन है न्यूरॉन्स का, वहाँ पर ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको ये सप्रेस करती है टोपिरामेट. इट इज़ ऑल्सो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर
एंड सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। इसके अलावा इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे भी इनहिबिटिंग इफेक्ट है। टोपिरामेट पोटेंशिएट्स द एक्टिविटी ऑफ गाबा, और गाबा की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। इट हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव adjunctive therapy for partial seizure and treatment in adults, tonic-clonic seizures, infantile spasm and Lennox-Gastaut syndrome, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में ये ट्रीट की जाती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज एडजंक्टिव थेरेपी, नॉट अलोन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें टोपिरामेट की, 17 ईयर्स एंड ओल्डर में 25 to 50 milligram per day and up to 400 milligram per day in 2 divided doses. Children 2 to 16 years 1 to 3 milligram per kg per day and up to 5 to 9 milligram per kg per day in 2 divided doses. Topiramate is 80% bioavailable and food does not affect its bioavailability, लिहाजा फूड के साथ या बगैर फूड के दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है। डोज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर पेशेंट विद रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो रीनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट दोनों में से कुछ भी हो, इसकी डोज रिडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि दोनों इसके रूट ऑफ एलिमिनेशन है। एंजाइम इंड्यूसिंग एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स कैन डिक्रीजेज द टोपामिनेट लेवल, लाइक कार्बामेजेपिन हो गई, फेनिटोइन हो गई, फेनोपार्बिटोल हो गई। बट टोपिरामेट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स एज वेल, लेकिन टोपिरामेट खुद भी जो है दूसरी ड्रग्स के, जो दूसरी एंटी कन्वल्सिव ड्रग है, उनके मेटाबॉलिज्म पर सिग्निफिकेंटली असरअंदाज होती है। Initial treatment is 50 milligram daily and followed by titration up to an effective dose. तो स्टार्ट करें 50 milligram daily से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए इफेक्टिव डोज तक चले जाएं। More than 400 milligram daily has not been shown to improve the response, लिहाजा 400 मिलीग्राम से ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी वजह से इसकी मैक्सिमम डोज है 400 मिलीग्राम पर डे। टोपिरामेट के अगर प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट की बात करें, so increases incidences of kidney stone, renal calculus in older patient who receive the drug. Patient should be advised to increase intake of fluid while taking the topiramate, लिहाजा क्योंकि ये किडनी स्टोन करती है, लिहाजा उसको डिज़ोल्व रखने के लिए, ड्रग को डाइल्यूट रखने के लिए और यूरिन ज़्यादा बनाने के लिए, ताकि वहाँ पे स्टोन्स ना बने, किडनी स्टोन्स, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा पीनी चाहिए। ये पेशेंट की काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वाइल डिस्पेंसिंग टोपिरामेट। Paresthesias is a common side effects of anhydrase inhibitor, यानी partial loss of sensation, and due to effect of topiramate, renal bicarbonate loss and metabolic acidosis को ढका, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है तो उस वजह से जो है वो रीनल बाइकार्बोनेट लॉस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, तो वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। Topiramate could cause oligohydrosis and hyperthermia, means decrease sweating and increase the temperature, ठीक है। oligohydrosis, decrease sweating, hyperthermia, increase temperature. Acute myopia with secondary angle closure glaucoma या close angle glaucoma could occur typically with 1 month of therapy in which drug should be discontinued. तो अगर मायोपिया हो रहा हो या क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो रहा हो तो फिर ड्रग को डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, द फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अकर: ब्रेस्ट पेन इन फीमेल, nausea, tremor which are dose related side effects, बैक पेन, चेस्ट पेन, डिस्पेप्सिया और लेग पेन। तो इस सूरत में जो होगा वो क्या करना होगा, इमीडिएटली नोटिफाई करें। CNS effects mostly seen in 600 milligram per day dose include psychomotor slowing, difficulty with concentration and speech, somnolence यानी नींद ज़्यादा आना, fatigue, asthenia, weight loss, asthenia भी वीकनेस में का वीकनेस ही है, cognitive disturbances, difficulties, tremors, dizziness, ataxia and headache। GI इफेक्ट्स की बात करें तो वही nausea, vomiting, gastroenteritis, genitourinary, polyuria, oligouria, renal calculus, cardiovascular effect, chest pain, palpitation and vasodilation. Ocular effects are abnormal vision, eye pain, diplopia and glaucoma. Hematological effects क्या हो सकते हैं, anemia, epistaxis, leukopenia and aplastic anemia। epistaxis क्या होता है, जैसे यानी नाक से खून बहना एकदम बहुत ज़्यादा, यानी जिसको हम कहते हैं उर्दू में नक्सीर फूट जाना। अदर इफेक्ट्स आर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोहाइड्रोसिस यानी कम पसीना आना इन चिल्ड्रन। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है। टू इन्फॉर्म पेशेंट्स
of the potential risk for adverse effects including suicidal thoughts and behaviors and teratogenic effect like cleft palate and cleft lip and cleft palate that may occur during the treatment. लिहाजा इसकी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है. पेशेंट खुद भी उसको पढ़ ले. इसके लिए मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट. सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन क्या है? फेनिटोइन एंड कार्बापेजिपिन विल इंक्रीजेज द क्लियरेंस ऑफ दिस ड्रग and yani topiramate and topiramate increases the clearance of other drugs that are cleared by cytochrome P450 enzyme. So this is about topiramate. Now the next drug is tiagabine. Tiagabine की अगर हम बात करें तो mechanism of action, tiagabine is designed to act on the inhibitory action of GABA by blocking its uptake. तो जब इसका uptake GABA का ब्लॉक होगा तो ये अपने रिसेप्टर पर ज़्यादा देर बाइंड रहेगी और जब ज़्यादा देर बाइंड रहेगी तो फिर इनहिबिटरी इफेक्ट न्यूरॉन्स पर आएगा. सो देयर बाय प्रोलॉन्गिंग इट्स एक्शन एट साइनेप्टिक रिलीज. इट इज़ इंडिकेटेड एज एडजंक्टिव थेरेपी फॉर पार्शल सीजर. ठीक है, ये एडजंक्टिव थेरेपी यूज़ होती है, अलोन यूज़ नहीं होती. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें टायागैबिन की. सो स्टार्टिंग डोज 4 मिलीग्राम डेली फॉर 2 वीक्स एंड मे बी इंक्रीज टू 4 to 8 milligrams weekly thereafter to a maintenance dose of 32 to 56 milligrams daily. Maximum dose recommended in children for children 32 milligram daily and maximum dose for adult is 56 milligram daily. अच्छा, उसके बाद है a high fat meal decreases the rate of tiagabine absorption but does not affect the extent of absorption. यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो कम होगा फैटी मील के साथ, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होगी. वो तो जितनी एब्जॉर्ब होनी है पूरी हो जाएगी. अच्छा, टाइगैबिन शुड बी टेकन विद फूड. लिहाजा टाइगैबिन जो है वो फूड के साथ लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट कोशिश ये करें कि हाई फैट मील ना हो क्योंकि इससे एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी. टाइगैबिन की अगर हम उसमें बात करें ये प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स पे, तो मॉडरेटली टू सीवियर जनरलाइज वीकनेस has been reported and it is resolved in cases after reduction in dose or discontinuation of therapy. ये जो जनरलाइज वीकनेस है ये डोज रिडक्शन से कंट्रोल में आ जाती है और कभी कभी डिसकंटिन्यू करने से भी ये वीकनेस का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है. ऑप्थेल्मोलॉजिक इफेक्ट्स इसके क्या है? एज इंडिकेटेड इन एनिमल स्टडीज इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिडुअल बाइंडिंग टू रेटिना एंड मेलेनिन बाइंडिंग. रेटिना और मेलेनिन के साथ बाइंड हो जाते हैं and this finding has not been confirmed in human studies but periodic ophthalmologic monitoring is necessary. ह्यूमन में ये बाइंडिंग रेटिना से और मेलेनिन से रिपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल भी एहतियात के तौर पे जो आई एग्जामिनेशन हो वो टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए while the patient is on the treatment of tiagabine. Dermatologic effects क्या है? Include the possibility of severe rash like Stevens-Johnson syndrome reported in some clinical studies. Sudden unexpected deaths have been reported as many as 10 cases in 2,531 patients or 3,831 patient years of exposure. यानी 10 पेशेंट्स को जो है वो 2,531 में से हर 10 पेशेंट जो थे उनमें सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई. लिहाजा इसको भी ज़रा गौर से देखता प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग के पैरामीटर को सामने रखना ज़रूरी है. Electroencephalogram abnormalities. Spike and wave discharges on EEG have been reported to exacerbation of their EEG abnormalities associated with cognitive और neuropsychiatric events. ठीक है, तो ये जो है cognitive और neuropsychiatric जो है वो abnormalities होती हैं जिसकी वजह से EEG abnormal होता है. तो पेशेंट यूजुअली कंटिन्यू टाइगैबिन बट रिक्वायर डोजेज एडजस्टमेंट. इस सिलसिले में अगर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं तो टाइगैबिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी. एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सीरियस इफेक्ट्स आर कन्फ्यूजन, डिजीनेस एंड फटीग. GI इफेक्ट्स आर स्टमक अपसेट, नोजिया, माउथ अल्सरेशन एंड एनोरेक्सिया. रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है. Why? To raise awareness of risk of suicidal thoughts and behavior that could occur during the treatment. So there have also case reports of seizure in patients without history of epilepsy who were receiving tiagabine for
अनअप्रूव्ड इंडिकेशन मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए वो टायागाबिन ले रहे थे तो उनमें फिर एपिलेप्सी जो है वो या सीजर वाक़ हुए, तो ये भी रिपोर्टेड है। मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इस ड्रग के क्या हैं? फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन एंड कार्बामेजेपिन विल इंक्रीजेज द टायागाबिन क्लियरेंस। जब उसकी क्लियरेंस कम हो जाएगी तो प्लाज्मा लेवल कम होने लगेगा, तो फिर शायद इसकी डोज बढ़ाने की ज़रूरत होगी अगर ये ड्रग फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन या कार्बामेजेपिन के साथ ली जा रही है। नाउ 14th ड्रग और द नेक्स्ट ड्रग इज जोनेसामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इज़ नॉट वेल नोन, ठीक है। इट मे ब्लॉक द सेंसिटिव सोडियम चैनल एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल, यानी मे भी ये सोडियम चैनल को और टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर एडजंक्टिव थेरेपी फॉर पार्शल सीजर फॉर एडल्ट, तो ये भी एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर यूज़ की जाती है, अलोन इसको यूज़ नहीं किया जाता। डोजेज की अगर हम बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ जोनेसामाइड, above 16 years of age 100 milligram daily within 2 weeks and increase to 200 milligram daily in 2 weeks basis and up to 600 milligram daily, यानी 200 मिलीग्राम हर 2 हफ्ते के बाद बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 600 मिलीग्राम डेली। एंड कैन बी टेकन विद और विदाउट फूड, लिहाजा फूड के साथ या विदाउट फूड दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से लिया जा सकता है। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स इसके क्या हैं? पोटेंशियली फेटल रिएक्शन टू सल्फोनामाइड्स, ठीक है ना, यानी सल्फोनामाइड एलर्जी का इशू इसके साथ है क्योंकि इसमें जोनेसामाइड में सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद होता है। फेटेलिटीज़ हैव अकर्ड ऑल्दो रेयरली एज ए रिजल्ट ऑफ सीवियर रिएक्शन ए सल्फोनामाइड इंक्लूडिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, फल्मिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक एनीमिया एंड अदर ब्लड डिस्क्रेसियास। तो ये जो है वो किसी भी किस्म का शदीद किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से फेटेलिटी रिपोर्ट हुई हैं। ऑल्दो ये रेयर केसेस में है लेकिन बहरहाल इसी वजह से मॉनिटर करना ज़रूरी है। सीवियर हेमेटोलॉजिक इवेंट्स, वेरी रेयर केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया एंड ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस वर रिपोर्टेड। इसके अलावा कग्नाइटिव न्यूरोसाइकोट्रिक एडवर्स इवेंट भी रिपोर्टेड हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज, यानी जो कग्नाइटिव और न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स इवेंट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी साइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन एंड साइकोसिस। नंबर 2 साइकोमोटर स्लोइंग लाइक फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी विद कंसंट्रेशन, यानी किसी चीज़ को पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, उसमें मुश्किल होना, डिफ़िकल्टी इन स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम इन पर्टिकुलरली वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज, यानी बात करते हुए प्रॉपर वर्ड जो है वो यानी वोकैबुलरी जो होगी फाइंड करना मुश्किल हो जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है सोमनोलेंस और फटीग, यानी नींद बहुत ज़्यादा आना और वीकनेस होना। इसके अलावा जो और इशू है इसके साथ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एलिवेशन एंड पेनक्रिएटाइटिस, ठीक है, यानी ये एंजाइम CPK के बढ़ जाना और पेनक्रिएटाइटिस होना। रेयर एडवर्स इवेंट हैव बीन ऑब्जर्व लेस देन 1 in 1000, ठीक है ना, यानी 1000 में एक केस ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज लेवल अप होता है या पेनक्रिएटाइटिस का इशू आता है। सीवियर मसल पेन और वीकनेस वो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज की एलिवेशन से, एंड आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फीवर, मार्कर ऑफ मसल डैमेज शुड बी असेस्ड, ठीक है, क्योंकि ये मसल डैमेज हो रहा है तब ये CPK एंजाइम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इंक्लूडिंग क्या करें कि शुड बी असेस इंक्लूडिंग CPK एंड एल्डोलेज लेवल, इन दोनों एंजाइम को चेक करते रहें। ये चेक करने के लिए कि कहीं इस ड्रग से मसल डैमेज तो नहीं हो रहे। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू टेपरिंग एंड और डिसकंटिन्यूइंग द जोनेसामाइड। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर इसको डोज जोनेसामाइड स्टॉप करनी पड़ेगी, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फिर टेपर करके डोज कम कर दें। किडनी स्टोन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन 4% पेशेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल, लिहाजा जो है वो वाटर जो है इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मे इंक्रीज मीन कंसंट्रेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इन ब्लड, यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड रीनल फंक्शन शुड बी मॉनिटर्ड पीरियडिकली, लिहाजा सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा देता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ा देता है, तो इस वजह से इनको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है।
सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी, ऐसा भी हुआ है। 9 सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ हैव अकर्ड अमंग 991 पेशेंट्स इन एपिलेप्सी, मीन्स 7.7 डेथ्स पर 1000 पेशेंट ईयर, यानी साल में 1000 पेशेंट में 7.7 पेशेंट एज एन एवरेज डेथ रिपोर्टेड हुई है। ओलिगोहाइड्रोसिस यानी कम पसीना आना, ओलिगोहाइड्रोसिस एंड हाइपरथर्मिया हैव बीन रिपोर्टेड इन पीडियाट्रिक पेशेंट, यानी लेस स्वेटिंग एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें जोनेसामाइड से, CNS इफेक्ट्स आर डिजीनेस, हेडेक, सोमनोलेंस, एटेक्सिया, ट्रेमर एंड एबनॉर्मल थिंकिंग, तो ये हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स क्या हैं? पैल्पिटेशन करेगा, टेकिकार्डिया, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी यानी बहुत सारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम होगी। डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स मैक्यूलो पेपुलर रैश, एक्नी कॉज करेगा, एलोपेशिया यानी लॉस ऑफ हेयर एंड फोटोसेंसिटिविटी। इसके अलावा अदर इफेक्ट्स नोजिया, एजिटेशन और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, इस तरह का बिहेवियर होगा। रैम प्रोग्राम इस पर भी एप्लीकेबल है। वाई? टू कम्युनिकेट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ जोनेसामाइड। पेशेंट को भी ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इसको पढ़े। इसके लिए मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन जोनेसामाइड के क्या है? जोनेसामाइड इंड्यूसेस द लिवर एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे लिवर एंजाइम्स को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म एंड थ्रू क्लियरेंस ऑफ जोनेसामाइड एंड डिक्रीजेस द हाफ लाइफ, और अपनी भी क्लियरेंस को भी बढ़ाती है और अपनी हाफ लाइफ को भी कम करती है। फूड विल डिले द एब्जॉर्प्शन बट विल नॉट अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ फूड से डिले होगा एब्जॉर्प्शन का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है जोनेसामाइड का इशू। Now the next drug is levetiracetam. Now if we talk about the levetiracetam, so its mechanism of action, it is pyrrolidine derivative and it is chemically unrelated to other anti-epileptic drug, ठीक है। तो इसमें पायरोलिडीन जो मॉलिक्यूल होता है, रिंग होता है, वो मौजूद होता है। इट डिस्प्लेज इनिबिटरी प्रॉपर्टीज इन द किंडलिंग मॉडल इन रैट्स, यानी जो मॉडल्स होते हैं रैट्स के एक्सपेरिमेंट्स के, उन पर इनिबिटरी रिस्पॉन्स देता है। इट इज़ यूजुअली यूज एज एडजंक्टिव थेरेपी, यानी अलोन यूज़ नहीं की जाती इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्शल सीजर, मायोक्लोनिक सीजर एंड जनरलाइज सीजर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट 16 ईयर्स एंड ओल्डर में स्टार्टिंग डोज ऑफ 1000 मिलीग्राम पर डे गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेज एंड मे बी इंक्रीज एवरी 2 वीक्स, यानी हर 2 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के इसको मैक्सिमम 3000 मिलीग्राम पर डे तक ले जा सकते हैं। चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज में इनिशिएट थेरेपी विद 10 मिलीग्राम ट्वाइस डेली एंड डोज में बी इंक्रीजेस बाय 20 मिलीग्राम पर केजी डेली एवरी 2 वीक्स के हिसाब से, और मैक्सिमम डोज तक आप ले जा सकते हैं 30 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली। इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट क्या हैं? लेवेटायरेसीटम के हेमेटोलॉजिक इफेक्ट्स आर माइनर बट देयर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिक्रीज कंपेयर टू प्लेसिबो इन टोटल आरबीसी कंसंट्रेशन, मीन हीमोग्लोबिन एंड मीन हेमाटोक्राइट कंसंट्रेशन, यानी जो है वो स्टैटिस्टिकली बहरहाल प्लेसिबो के मुकाबले में ये सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो माइनर रिडक्शन है इन द आरबीसी, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्राइट, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंट है, लिहाजा इनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इसके अलावा डिक्रीज इन WBC काउंट एंड न्यूट्रोफिल काउंट, लिहाजा टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि इनकी पेशेंट्स जो है वो लेवेटायरेसीटम पर हैं, उनकी जो है वो CBC करवाया जाए। इट ऑल्सो कॉज ड्राउजीनेस। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट्स आर सोमनोलेंस यानी नींद ज़्यादा आना, वीकनेस यानी एस्थेनिया, हॉस्टाइलिटी यानी एक तरह से एकदम गुस्से में आके दुश्मनी पे उतर आना, इन्फेक्शन एंड फटीग। CNS इफेक्ट्स आर सोमनोलेंस, डिजीनेस, डिप्रेशन एंड नर्वसनेस। डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स क्या हैं? प्लूराइटिस, स्किन डिस्कलरेशन, रैश एंड एलोपेशिया। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है, रिनाइटिस कॉज हो सकता है और कफ इंक्रीज हो सकती है। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इसके क्या है? लेवेटायरेसीटम डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से ये दूसरी ड्रग के लेवल पर कोई असर नहीं डालती।
and other anti-epileptic drugs do not influence the pharmacokinetic effect of levetiracetam। और दूसरी एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स भी जो है वो लेवेटायरेसिटम के प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर या फार्माकोकाइनेटिक पर कोई असर नहीं डालती। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लेवेटायरेसिटम का जो है वो दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं है। तो ये था लेवेटायरेसिटम। नाउ द नेक्स्ट ड्रग और द 16th ड्रग इज ऑक्सकार्बेज़ेपिन। अच्छा, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दिस ड्रग प्रोड्यूसेस द ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। जब ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो रिजल्टिंग इन स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपर एक्साइटेड न्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो हाइपर एक्साइटेड थी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। एंड इनिबिशन ऑफ रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग, बार बार जो न्यूरोनल फायरिंग हो जाएगी वो भी इनिबिट होगी। एंड डिमिनिशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साइनेप्टिक इम्पल्सेस, और जो साइनेप्टिक इम्पल्स थी वो भी डिमिनिश या कम हो जाएंगी। दीज एक्शंस आर थॉट टू बी इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ सीजर स्प्रेड इन द इंटेक्ट ब्रेन। इस एक्शन से ये होगा कि सीजर जो होगा वो ब्रेन में स्प्रेड नहीं करेगा। इन एडिशन इंक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ हाई वोल्टेज एक्टिविटी कैल्शियम चैनल कंट्रीब्यूट टू एंटी कन्वर्सिंग इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इसके अलावा ये क्या करेगी, पोटेशियम कंडक्टेंस को बढ़ाएगी और मॉड्यूलेट करेगी कैल्शियम चैनल को, ताकि मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर स्टेबलाइज हो जाए। अच्छा, इंडिकेटेड फॉर पार्शियल सीजर इन एडल्ट्स एंड एज मोनोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ partial seizure in children 4 years of age and older with epilepsy, and as adjunctive therapy in children 2 years of age and older with epilepsy। तो इंडिकेटेड है पार्शियल सीजर इन एडल्ट एज ए मोनोथेरेपी, एडल्ट में मोनोथेरेपी के तौर पर ये यूज़ होती है। और पार्शियल सीजर में यूज़ होती है इन चिल्ड्रन 4 years ऑफ एज एंड ओल्डर, 4 से ऊपर, यानी एडल्ट से पहले ओल्डर, बट एज एन एडजंक्टिव थेरेपी ओल्डर एपिलेप्सी में। ठीक है, और एडजंक्टिव थेरेपी इन चिल्ड्रन 2 years ऑफ एज एंड ओल्डर विद एपिलेप्सी, यानी 4 साल से ऊपर जो होगा वो वो फिर मोनोथेरेपी की यूज़ होगी, यानी 4 साल से पहले ये जो होगी 2 साल से ज़्यादा और 4 साल से पहले ये एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर यूज़ होगी। एडमिनिस्ट्रेशन इन डोजेज की बात करें, चिल्ड्रन 4 to 16 years 8 to 10 milligram per kg per day to a maximum dose of 600 milligram per day as adjunctive therapy and up to 8 to 10 milligram per kg per day as monotherapy। एडल्ट की बात करें, 600 milligram per day as adjunctive therapy and 1200 milligram per day यानी double dose as monotherapy। A dosage adjustment is needed for patient with renal failure. No dosage adjustment is needed for patient with mild to moderate hepatic impairment। तो क्योंकि इसका मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन किडनी है, लिहाजा रीनल फेलियर में इसकी डोजेज एडजस्टमेंट ज़रूरी है कि जो लिवर इम्पेयरमेंट में कोई ख़ास डोजेज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैन बी टेकन विद और विदाउट फूड, क्योंकि दोनों से कोई इसकी बायो अवेलेबिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑक्सकार्बेज़ेपिन की प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट पर अगर हम बात करें, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोनेट्रीमिया में अकर, यानी सोडियम लेवल लेस दैन 125 मिलीमोल पर लीटर एंड कैन डेवलप ड्यूरिंग द थेरेपी। सीरियस डर्मेटोलॉजी, लिहाजा सोडियम लेवल मॉनिटर करते रहें। सीरियस डर्मेटोलॉजिक रिएक्शन इंक्लूड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हैव रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, लिहाजा इस तरह के रिएक्शंस को मॉनिटर करते रहें। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं ऑक्सकार्बेज़ेपिन के? CNS इफेक्ट्स आर डिजीनेस, सोमनोलेंस, हेडेक, एटेक्सिया, फटीग, कॉम्पिटिटिव सिम्टम्स लाइक साइकोमोटर स्लोइंग, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड वर्टाइगो यानी चक्कर आना रिपोर्टेड है। GI इफेक्ट्स क्या है? वॉमिटिंग, नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल इफेक्ट्स आर एबनॉर्मल गेट एंड ट्रेमर, यानी बॉडी का पोस्चर डिस्टर्ब होगा, ट्रेमर होगा। Ocular effects are diplopia, nystagmus and abnormal vision. Endocrine and metabolic effects commonly in elderly include hyponatremia, means low level of sodium, and dermatologic effects are rash। Significant interaction इसके क्या है? ऑक्सकार्बेज़ेपिन inhibit the cytochrome
P452C19 enzyme and induces cytochrome P450 3A4 and 3A5 एंजाइम. जब ये एंजाइम 3A4 और 3A5 इंड्यूस होगा तो वो तमाम ड्रग जो इससे मेटाबोलाइज होती हैं उनकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन कम होगी, तो उसको कंसिडर करना ज़रूरी है. सो विद पोटेंशियली इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स, यानी वो अदर ड्रग्स जो इससे मेटाबोलाइज होती हैं. Serum concentration of phenytoin and phenobarbital are increased with oxcarbazepine, and it decreases the oral contraceptive effects and benzodiazepine and calcium channel blocker. यानी ऑक्सकार्बेजेपिन जो है वो इसके अलावा और क्या कर रही है कि ये डिक्रीज़ कर रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, तो फिर अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे. इसके अलावा ये डिक्रीज़ करेगी इफेक्ट को किसके, बेंजोडाइजेपिन के भी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के भी. इसके अलावा क्रॉस सेंसिटिविटी विद कार्बामेजेपिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और ऑक्सकार्बेजेपिन और कार्बामेजेपिन का स्ट्रक्चर बेसिकली सिमिलर है, इसलिए अगर कार्बामेजेपिन से एलर्जी होगी तो 25% to 30% चांसेस है कि ऑक्सकार्बेजेपिन से भी एलर्जी होगी. तो ये क्रॉस सेंसिटिविटी इनके दरमियान में मौजूद है. तो ये हमने 16 ड्रग ऑक्सकार्बेजेपिन पढ़ ली. इसके बाद जो 17 ड्रग है यानी लेकोसामाइड, दैट वी विल स्टार्ट टू डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.